This conference will now be recorded. सो क्लास स्टार्ट करने के पहले यू नो सम क्वेश्चंस आई हैड पोस्टेड इन ग्रुप में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. इसका क्या आंसर है हम चेक करते हैं. So the first question was here, will you buy or will you sell? This question. So some people replied to me buy, some people replied to me sale, some people not even replied. So let me tell you what is the answer. The answer of this question is buy. Why? Because market came to DMG and made a W pattern over here, and you see it's given a breakout retest. Now it went up. Also trend line also got broken. The target will be the last swing. This is the maximum target. And there was second question, this question, like I don't think apart from one or two people made this correct answer. Everybody's answer was wrong. Question was, which trend line is good? कौन सा trend line बेहतर है? you know so many people replied me A is good, A is good, B is not. Some people B, some people not even replied correctly. you know because random. Let me tell A means, without any logic. The correct answer is B. Why B is correct? You see here the A. Why is A is not a good trend line? जैसा trend line breakout. Why A is not a good trend line breakout? जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, मेक श्योर उसके पहले मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना चाहिए. इट शुड बी हायर हाई हायर लोज. In this case, you know when the market is going to break the trend line, the structure must be changed for the market. Okay, it should be forming higher highs and higher lows, then it should give a breakout. That breakout actually works. Otherwise, यहाँ पे देखो breakout होने के पहले what is the market structure? Lows अभी भी down है, highs अभी भी down है. Market is not making higher highs. That's why ये breakout के बाद market sideways चला गया. Sometime it will come back and hit SL also. बट इस ब्रेकआउट में अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट ये जूम आउट करके मैंने पिक्चर लिया. द पिक्चर हैज बीन टेकन आफ्टर जूमिंग आउट द ट्रेडिंग व्यू. So here the market is, we can continuously we can see the market is making higher highs, higher lows, then it given a breakout and retest. That's why this breakout was a worthy breakout, a good breakout. So these were two questions I just thought to discuss before we move today's class. So today's class is price patterns. Very important topic. Very the major means, if you go and learn any price action techniques, price patterns are very important. अगर आप मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन सीखने जाते हो तो विदाउट प्राइस पैटर्न दैट कोर्स इज इनकम्प्लीट. ओके, बिकॉज प्राइस पैटर्न गिव यू एन हिंट्स. ये हिंट्स देता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, वेयर द मार्केट विल गो. Okay, so before coming to the price patterns, let me explain you something about volume. Okay, I don't use volume a lot in price action. मैं ज़्यादा वॉल्यूम को यूज़ नहीं करता, मैं थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ. कभी कभी वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ जहाँ मुझे कुछ कंफ्यूजन लगता है. When there is some confusion while giving the breakout, or anywhere where I'm not more convinced with my price action methods, then I also use volume there. बट नॉट ऑलवेज, समटाइम्स. ओके, मैं हमेशा यूज नहीं करता, कभी कभी यूज करता हूँ. सो देखिए वॉल्यूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम. इज वॉल्यूम कैसे चलता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम भी नीचे जाएगा. दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर. अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो वॉल्यूम भी फॉल करेगा. अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस इज गोइंग अप, वॉल्यूम विल ऑल्सो गो अप. Price will go down, volume will go down, price will go up, volume will go up. This is the normal behavior. ये वॉल्यूम का नॉर्मल बिहेवियर है. वॉल्यूम ऐसे ही चलता है. यू नो जब भी प्राइस में फॉल आएगा वॉल्यूम में फॉल आएगा. जब भी प्राइस में एक ऊपर की तरफ रैली आएगी, वॉल्यूम में भी ऊपर की तरफ रैली आएगी. दिस इज नॉर्मल बिहेवियर. बट इन स्टॉक मार्केट 2022 नॉर्मल बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलता है. इन 2022 वी कांट इवन थिंक ऑफ नॉर्मल बिहेवियर. The market is so much manipulated by the people, we can't even think of the normal, the study we do, and those theory we will not able to apply in the real market. हम जो स्टडी करते हैं वैसा मार्केट नहीं है, राइट. So let me explain you abnormal case.
which is my point of interest. What is abnormal case? मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी एंड वॉल्यूम में फॉल आएगा. When the price will go up, market will, the market prices are shooting up and at the same time volume is going down. This is abnormal. जैसा कि मैंने बताया, प्राइस ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम भी ऊपर जाना चाहिए, you know. But the issue is here price is going down, price is going up, but the volume is going down. It's not matching. This is called volume divergence. What is volume divergence? Volume divergence means when the price and volume don't match. जब प्राइस और वॉल्यूम आपस में मैच नहीं करते तो इनको वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं. मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाइज लगाएगा बट वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा. ओके, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम डाइवर्जेंस. So here you can see rising in the price must need rise in the volume, okay, to sustain. मतलब if the price is going up, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम को भी ऊपर जाना होगा तभी मार्केट ऊपर जा पाएगा. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम नीचे आ रही है तो मार्केट कब किसी भी वक्त में एक रिवर्सल दे देगा. If the market is going up at any time, if the market and the price and volume are not matching, for example market is continuously going up and at the same time volume is going down, you should not bet in the bullish direction. Why? Because the market can go down anytime, right? Because why it will go, I will tell you. Okay, if reverse is going, if the reverse is going on, the price will not sustain. As the price is moving up, buyers are getting less enthusiastic. What is the meaning of this? Let's try to understand. अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम को मैं कैसे रीड करता हूं? लेट मी टेल यू हाउ आई रीड द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज लाइक इंटरेस्ट फॉर मी. मेरे लिए वॉल्यूम का मतलब होता है लोगों का इंटरेस्ट. जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है, अगर वॉल्यूम भी ऊपर जाती है तो आई कैन थिंक कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दे आर लाइकिंग दिस अप रैली. अगर मार्केट ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए. दिस इज द रीजन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइट? दे आर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग. ओके, if market is going up and volume is also going up, this means people are interested, people actually liking this behavior, people are very much happy with this up rally. That's why they are continuously betting, they are continuously buying when the market is going up. That's why volume is also increasing. So market अगर ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी अगर ऊपर जाती है, so ये दर्शाता है कि मार्केट का जो ऊपर की तरफ रैली हो रही है, लोगों को ये रैली अच्छी लग रही है. दे आर लाइकिंग दिस, उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. लेकिन हाउ आई रीड दिस चार्ट, इस चार्ट को मैं कैसे पढ़ूंगा? द मार्केट इज यू सी गोइंग अप बट वॉल्यूम इज गोइंग डाउन. मतलब मार्केट जो ऊपर जा रहा है, लोगों को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर लेस एंथुजियास्टिक. उनको उनमें उत्साह नहीं है. दे आर दे आर नॉट लाइकिंग दिस. मार्केट का ऊपर जाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. सी दिस इन द वॉल्यूम, because when the price is going up means price is pumping up, but volume is not pumping. Means simple, it's this is what the institutions are, overbought condition or oversold condition occurs that time. The institution are pumping unnecessarily, because अगर लोग भी उस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. लेकिन अगर केवल प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, वॉल्यूम बल्कि नीचे जा रही है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम वैसे ही नीचे ही आ रही है. कंटिन्यूअस वॉल्यूम नीचे आ रही है और कंटिन्यूअस प्राइस ऊपर जा रहा है. इसका मतलब प्राइस ऊपर जा कैसे रहा है? वाई? बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर पंपिंग. और जब इंस्टीट्यूट पंप करते हैं, वो कैसे पंप करते हैं? दे हाइड देयर वॉल्यूम्स. वो अपने वॉल्यूम छुपा के पंप करते हैं. दैट्स वाई उनके अगर यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम स्पाइक भी आएगी तो वो नहीं शो करेगी. Why? Because when institutions are pumping, their volumes are hidden. Whenever you are also placing an order, there is an option you can hide your volume, right? So whenever they are pumping, they hide their volume. जब इंस्टीट्यूशन पंप करते हैं तो उनका वॉल्यूम वो छुपा के पंप करते हैं. बट मेजोरिटी ऑफ जो जनता होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो अपना वॉल्यूम नॉर्मली जैसा वॉल्यूम 10 क्वांटिटी लिया तो 10 ही दिखा के बाई करते हैं, 1000 लिया 1 दिखा के बाई करते हैं. दैट्स द रीजन वो वॉल्यूम में या नोट हो जाता है. सो अगर वॉल्यूम जनता बाई कर नहीं रही है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. वाई? बिकॉज मार्केट इज सो वॉल्यूम नीचे जा रहा है, लोग खरीद नहीं रहे, बट स्टिल प्राइस ऊपर जा रहा है. दिस मीन्स दिस इज अ पंप. दिस इज अ पंप. एंड ऐसे पंप के बाद मार्केट इमीडिएटली डंप कर दिया जाता है, इमीडिएटली फॉल हो जाता है,
राइट? सो व्हेनेवर यू आर सीइंग कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम इज नॉट गोइंग अप विद दिस, प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम इज नॉट गोइंग अलोंग विद दिस, वॉल्यूम भी ऊपर नहीं जा रहा है, दोनों में मैच नहीं हो रहा है, सो दिस इज प्रोबेबली अ पंप एंड डंप सिनेरियो। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट को ये लोग पंप करेंगे और एकदम से पटक के नीचे लेके आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ डंपिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी। सो डंप होने के पहले हमें वॉल्यूम में समझ आ जाती हैं चीजें कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड हेयर, दिस इज सिंपल पंपिंग। ओके, सो दिस इज वेयर आई एम इंटरेस्टेड, ये वो जगह जहां पे मेरा इंटरेस्ट आता है। Why? Because this is a abnormal case. Market is going up, but volume is not supporting. There is a divergence. Price ऊपर, volume नीचे. This is called volume divergence. And where I will look for selling opportunity. How I will sell here? Obviously, when the market are pumping. जब मार्केट पंप हो रहा होता है आप कहीं भी सेल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज नॉर्मल मार्केट अगर 2%, इफ आई विल टॉक अबाउट क्रिप्टो, क्रिप्टो के बारे में अगर हम बात करें, सो नॉर्मली मार्केट कितना मूव करता है, 5%, 10%, 8%। बट जब पंप होता है when the pumping occurs, you will see the market will move even 100, 200, 300%। अगर पंपिंग होता है तो मार्केट 100% भी मूव करता है। सो इफ यू आर गोइंग टू शॉर्ट इन द पंपिंग मार्केट जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है एंड यू डोंट नो वेयर इज द टर्निंग पॉइंट, ओके, अगर आप कहीं भी जाके शॉर्ट कर देते हो पंपिंग मार्केट में, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा विद इन जस्ट सेकेंड, कुछ सेकेंड में आपका अकाउंट खत्म, ये लोग खत्म कर देंगे। वाई? बिकॉज द मार्केट विल इमीडिएटली गो लाइक मार्केट में डाइवर्जेंस होगा, बहुत कुछ होगा बट मार्केट रुक नहीं रहा होगा, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा होगा, बस ऊपर जा रहा होगा, पुल बैक ले रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। जैसे बीटीसी में कुछ दिनों पहले हुआ था, राइट, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था एंड दे डंप्ड इट। शाम को 6 बजे, आई थिंक 2-3 दिन पहले, ट्यूसडे को शाम को 6 बजे एक साथ सारे अल्ट कॉइन्स को डंप किया, राइट? सो everybody was interested, सब कोई बाई कर रहे थे बट वॉल्यूम was going down, if you notice, at the same time dumping occurred. So this is called pump and dump strategy, okay, played by institutions। इसको इंस्टीट्यूट हमेशा कॉमन स्ट्रेटेजी रही है, वो हमेशा पंप और डंप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट? बट हाउ यू शुड शॉर्ट हेयर, आपको एक ट्रेंड लाइन का यूज करना पड़ेगा। जब भी आपको दिख रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम एंड प्राइस में डाइवर्जेंस है, प्राइस एंड वॉल्यूम्स आर नॉट मैचिंग, स्टार्ट ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन। ओके, ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ करिए, ये नहीं कि यहाँ पे आके ड्रॉ किया। मैंने देखा है आप लोग बहुत गलत ट्रेंड लाइन बहुत लोग ड्रॉ करते हो, आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हो। इतना बड़ा रैली है, अगर इफ द रैली इज सो हाई, इफ द रैली इज सो बिग, और यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन होगी, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन होगी। देयर विल बी अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन लाइक दिस एंड देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन आल्सो, राइट? बिकॉज एक वेब के अंदर भी छोटे छोटे कई सारे वेब होंगे, देयर विल बी मल्टीपल वेब्स विद इन अ वेब, राइट? सो आप लोग क्या करते हो, यहाँ छोटी सी ट्रेंड लाइन कट गई, आप लोग सेल करते हो एंड योर एसएल इज गॉन। ऐसा मत करना, स्पेशली इन द पंपिंग, डोंट डू दैट। इट्स अ सुसाइड, right? It's a direct suicide in the market, never ever do that। okay, so जब भी मार्केट में पंप हो, always try to look for long term trend line। okay, ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म में you will not get an entry। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन में जब भी हमें एंट्री मिलती है, don't go aggressive, don't short 100%। okay, how I enter, मैं कभी भी 100% यहाँ शॉर्ट नहीं करूंगा कहीं भी बीच में। अगर मुझे लग भी रहा है, अगर छोटी सी ट्रेंड लाइन कटी भी, आई विल एंटर विद 10%, 20% ऑफ माई कैपिटल। और जैसे ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आके उधर कुछ कंफर्मेशन देगा, देन आई विल एंटर, स्लोली स्लोली एंटर कराता हूँ। आई विल नॉट एंटर इन वन शॉट। ओके, आप लोग से गलती ये होती है, आप लोग एक शॉट में पूरा 100% क्वांटिटी एंटर करा देते हो और उसके बाद मार्केट जैसे ही आपके खिलाफ गया, आप लोग एक बड़े लॉस में आ जाते हो। यू शुड नेवर डू दैट। ओके, आपको क्या करना है, जहां पे एक, देखो आपको भी पता है दिस इज अ मेगा कंफर्मेशन एंड दिस इज अ स्मॉल कंफर्मेशन। जब छोटा कंफर्मेशन रहे, यू आर नॉट श्योर 100%, 95%, तब छोटी क्वांटिटी से एक एंट्री ले लो। इफ यू आर रॉन्ग, यू विल लूज स्मॉल अमाउंट। ओके, बट जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में आता जाता है, कीप एडिंग, तब आप ऐड करना स्टार्ट करो। बिकॉज जब ट्रेड आपके फेवर में आएगा, आपको समझ में आने लगेगा, ओके वाई, आपको मार्केट समझा देगा, खुद ब खुद मार्केट क्लियर करा देगा, मार्केट विल मेक यू क्लियर व्हाई दिस ट्रेड इज गोइंग इन योर फेवर। देन ऐड क्वांटिटीज, क्वांटिटी ऐड करना सीखिए। इफ यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 3000 क्वांटिटी, if you are not sure condition, 50-50, 60-40, then enter with 100 quantity or 300 quantity, 5 to 10% in the beginning।
जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में आता है, एड अगेन 20%, 10%, 20%, 10%, एंड व्हेन द मार्केट इज अग्रेसिवली गोइंग इन योर फेवर, जब मार्केट अग्रेसिवली आपके फेवर में जाता है, देन जितना भी रिमेनिंग क्वांटिटी आप उसको अपने हिसाब से ऐड करते चले जाओ. ओके, सो दिस इज व्हाट, बट प्रॉब्लम इज वी आर ग्रीडी, हम लालची हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है. हम हमेशा हाई पे सेल करना चाहते हैं, बट वी डोंट नो वेयर इज द हाई. अगर आप इसको हाई पकड़ के सेल करोगे, देन यू विल लूज. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे पूरा 100% क्वांटिटी से सेल कर देते हैं, एंड हमारा एसएल चला जाता है. बल्कि मैं क्या करता हूँ, मेरा स्ट्रेटेजी रहता है कि जब यहाँ कुछ कंफर्मेशन मिले तो मैं छोटी क्वांटिटी से सेल करूं. अगर स्टॉप लॉस चला गया, दैट्स वेल एंड गुड, नो इश्यूज. आई विल वेट एंड लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज. एक अगर स्टॉप लॉस इधर कहीं गया, सो इतना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि दिस स्मॉल टर्म ट्रेंड लाइन इज नॉट गोइंग टू वर्क. व्हाई? बिकॉज मार्केट इज वेरी इंपल्सिव. तब मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन में, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करेगा, विल नॉट गोइंग टू वर्क. आई विल लुक फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन. अगर छोटे ट्रेंड लाइन पे, अगर मान लो यहाँ की एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मिली, इसका ब्रेकडाउन पे मैं लेता हूँ, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है वो अभी भी मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्ट्रक्चर में, तो अगर आपका एक बार एसएल गया, सो दोबारा ट्रेड मत लो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन पर. लेट्स मार्केट ब्रेक द लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन एंड रीटेस्ट करने दो, देन एंटर, अदरवाइज लीव द ट्रेड. ओके, so this is called divergence, volume divergence. And this is one of my setup, DFTV setup that I made previous year. इस सेटअप को मैंने पिछले साल बनाया था. इसको मैंने हिंदी में नाम दिया था डाउनफॉल में तगड़ा वॉल्यूम. मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इन डाउनफॉल. अगर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आए जा रहा, बहुत बहुत अग्रेसिवली मार्केट नीचे आता है, कंटिन्यूअसली नीचे आता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत बड़ी वॉल्यूम आती है एकदम से, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है तो एकदम से एक बहुत बड़ी वॉल्यूम आती है, तो समझ जाओ मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इट मे टेक अ यू टर्न if the market is continuously going down. Okay, continuously, मतलब ऑलरेडी अ वेरी ह्यूज रैली अकर्ड, बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, उसके बाद जब बॉटम पे पहुंचता है, मतलब जब अब बॉटम बन सकता है, व्हेन बॉटम इज अबाउट टू अकर, एट दैट सिनेरियो व्हेन द मार्केट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन एंड व्हेन द बॉटम इज अबाउट टू अकर, at that point of time, if you see a very strong volume, color doesn't matter, red or green, okay, if you see a very strong volume, chances are very high the market will take a reversal. This is called bulls are entering secretly in the market. Bulls चुपचाप मार्केट में जब एंटर करते हैं तो ऐसे एंटर करते हैं. ओके, कंटिन्यूअसली सेल होगा और एकदम से बहुत स्पाइक आएगा नीचे में जाके बॉटम पे, एंड यू विल सी द मार्केट विल टेक अ एक्सट्रीम रिवर्सल फ्रॉम देयर. ओके, बट वी कांट ट्रस्ट दिस अलोन. ओके, वी नीड अदर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन. हम इस पे हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज समटाइम इट्स अ ट्रैप, जानबूझ के भी किया जाता है, बिकॉज पीपल नो दिस, वी आर लुकिंग फॉर दिस. सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड. दिस इज all about the volume. Okay, here you see the example. There you see the market is continuously going up, up, up. Also at the same time there is no, people are not interested. यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर चला गया, बट वॉल्यूम नीचे जा रहा है. वॉल्यूम एकदम से देखो, यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम यहाँ पे आई, उसके बाद फिर मार्केट जितना ऊपर गया, वॉल्यूम में कोई मूवमेंट नहीं है. मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है मार्केट ऊपर जाना. बट यू सी, जैसे मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुआ, लोग, वॉल्यूम बढ़ने लगा, लोगों के इंटरेस्ट आ गए. मीन्स पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग द मार्केट टू गो डाउन. लोग चाहते कि ये नीचे है, मेजोरिटी चाहती है कि ये नीचे है. सो व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप एंड द वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टिंग, तो इससे समझ में आता है पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट रैली. वॉल्यूम से हमें इंटरेस्ट समझ में आता है, व्हाट इज द मेजोरिटी ऑफ इंटरेस्ट. ऑल्सो ये देखो, ये दिस इज एन ऑक्सीलेटर, लाइक इसका नाम ऑसम ऑक्सीलेटर है, ऑसम ऑक्सीलेटर. दिस इज जस्ट लाइक आरएसआई. कोई भी टूल हम यूज कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड डाइवर्जेंस आई विल कवर. ओके, सो हेयर ऑल्सो डाइवर्जेंस वाज देयर इन द ऑक्सीलेटर ऑल्सो. बहुत सारे ऑक्सीलेटर होते हैं, जैसे आरएसआई, मैकडी, ऑसम ऑक्सीलेटर, वेयर थाउजेंड, सभी के एक ही काम है. you choose anyone and work with them. Okay, I use personally RSI is good for me because it's very helpful. Okay, so this is one example. Okay, let me quickly cover this one. Here you see मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है. यहाँ पे अचानक से मार्केट में एक ऊपर की तरफ रैली आई, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, then there is no volume increment. Volume is going down at the same time. But again you see the market given breakdown के समय एकदम से वॉल्यूम आ गया. मीन्स व्हाट?
people are liking this breakdown. लोगों को अच्छा लगता है ये breakdown, लोगों को अच्छा लग रहा है ये breakdown. That's the reason market, immediately volume is coming. Means people are actually waiting for this breakdown. लोग wait कर रहे थे इस breakdown के लिए. That's the reason they came. Okay, interest आ गया एकदम से market में, you see. So this is how you will able to, able to find, most of the price action confirmation. Price action is what? Based on the price behavior, you understand where the market may go. Okay, apart from indicator we use price. I always observe because price is the key. Okay, so here you see, यहाँ पे भी whenever market is making a downswing, volume is increasing, making a downswing, volume is increasing, making an upswing, volume is decreasing. So this is simple meaning people are liking the downswing, means this is a bearish market. आपको पता कैसे चलेगा market bearish हो रही है? जब आप देखोगे कि मार्केट में फॉल आ रहा है एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है हर फॉल पे, दिस मीन्स कि लोगों का इंटरेस्ट है सेलिंग में. दिस इज अ सेलिंग मार्केट, दिस इज अ बेयर मार्केट. इफ द people are interested, volume is coming in selling side. Whenever the market is taking a downswing and volume is coming, this means people are more interested in selling. Okay, this is a bearish market. Okay, सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ वॉल्यूम. ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जस्ट अ वॉल्यूम का. इतना अंडरस्टैंडिंग एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को होना चाहिए, वॉल्यूम को देख के समझ में आना चाहिए. व्हेन द वॉल्यूम विल मैच, जब वॉल्यूम आपके प्राइस के साथ मैच करे, सो फार थिंग्स आर गुड. बट वॉल्यूम आपके प्राइस के साथ मैच ना करे, देन दोज थिंग्स आर मे बी सस्पिशियस. वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी होता है. दिस मच अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड फॉर यू. अच्छा, नाउ range is very important. I love trading range trade karna, is one of the range is one of the key in the market. very बहुत ज्यादा पैसा बनता है रेंज में. हर ट्रेडर रेंज को ट्रेड जरूर करना चाहता है. व्हाई? बिकॉज रेंज इज द एरिया ऑफ कंफ्यूजन. रेंज वो एरिया जहां लोग कंफ्यूज हैं. ओके, यहाँ पे बाई सेल किधर जाएगा, नोबडी नोज वेयर द मार्केट विल गो. ओके, दैट्स व्हाई रेंज का जो कंफ्यूजन है, ब्रेकआउट जब भी हो, सो इट्स वेरी मच क्लियर मार्केट विल गेट अ डायरेक्शन. जब भी रेंज का ब्रेकआउट हो तो मार्केट को एक डायरेक्शन मिलता है, एंड वी आर नाउ क्लियर वेयर द मार्केट विल गो. सो रेंज ब्रेकआउट्स आर अ वेरी गुड ट्रेड्स, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं बिकॉज रेंज छोटा होता है. ओके, एंड टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं. टारगेट्स आर एक्सट्रीमली बिग इन द रेंज. I will show you some example. Let's say this is a range. यहाँ पे ऐसे एक range बना. Always one important thing I will tell you, all. I will tell you one important thing. Range का कभी भी breakout हो, don't enter. Don't enter on range breakout. Range breakout हमेशा trap करता है. I had seen couple of times, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है एक रेंज का, फिर नीचे चला जाता है एंड फिर नीचे ही चला जाता है. रेंज ब्रेकआउट में भी ट्रैपिंग होती है. You will see most of the time, what happens in the range. The issue is the market is creating a range, then it gives a breakout at the upside, and immediately, you see when the people are, started buying, they thought the market is going to be bullish. Immediately market comes down and trap everybody, right? So don't buy on range breakout immediately. Buy on retest, always in range breakout. Though in the lower time frame you have to go in the lower time frame, confirm, but it should be a retest. बिना रीटेस्ट के हम रेंज ब्रेकआउट को कभी नहीं ले सकते. वाई? बिकॉज दिस इज अ सिनेरियो कि ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा यहाँ पे. अगर आप यू बाई एट द ब्रेकआउट, आपको मार्केट ट्रैप करके नीचे चलाएगा और नीचे आते ही चला जाएगा. ओके, I will tell you, like if you trade a range breakout in higher time frame, okay, then you should check for retest. Definitely you have to check for retest, in the higher time frame. But when you trade in the lower time frame, I will tell you what people do in the lower time frame. They put the stop limit in the downside and upside, both sides. What happens when the market gives a breakout? What happens? Their buy order executed and they are in the buy trade. Then immediately market do the trapping and it comes over here. Okay, and both sides, they have, buy, double sell. So here what happens when the market comes here, they exit to the market and their sell order got executed and they are in the sale trade. Some people do this. What I'm saying,
कि मार्केट में लोग क्या करते हैं, रेंज ब्रेकआउट अगर हायर टाइम फ्रेम पे हो तो रीटेस्ट तो देखना ही है। लोग क्या करते हैं, रीटेस्ट, जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो लोग रीटेस्ट का वेट नहीं करते, वो लोग दोनों तरफ ऑर्डर लगा के रखते हैं। जिस तरह भी ब्रेक करे, लेट्स से ऊपर ब्रेक किया, उनके बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, अभी मार्केट ऊपर जाके एकदम से नीचे आने लगा, तो वो क्या करेंगे, आइदर यहाँ पे एसएल रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर यहाँ एक सेल ऑर्डर रहेगा फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दोनों एक साथ, एंड देन उनको एक नया एंट्री मिल जाएगा। एंड यू नो दिस इज हाउ दे ट्रेड। सम पीपल, कुछ लोग ऐसे भी ट्रेड करते हैं, दोनों तरफ ऑर्डर लगा के रखते हैं रेंज में, बट दिस इज डेंजरस। ऐसा डेंजरस हो सकता है, इसीलिए ऑलवेज लुक फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट देखना बहुत जरूरी है स्पेशली इन 2022 से जितने भी मार्केट अभी आने वाले हैं, डोंट बाई ऑन ब्रेकआउट बिकॉज यू कैन गेट ट्रैप्ड। अगर बाई ब्रेकआउट पे बाई करते भी हो तो डोंट बी अग्रेसिव, यू नो, डोंट यूज 100% कैपिटल पे कभी बाई मत करना और सेल मत करना, बिकॉज यू कैन गेट ट्रैप। बिकॉज रीटेस्ट करने अगर नहीं आया, यू नो, मार्केट दो होगा, या तो रीटेस्ट करके जाएगा या फिर रीटेस्ट नहीं करेगा, दैट वाज अ ट्रैप, ट्रैप करके नीचे आ जाएगा। सो इसीलिए रीटेस्ट पे ही ट्रेड लेना, अदरवाइज यू विल लूज, यू नो, योर मनी, अपना पैसा कमा दोगे। सो रेंज को हम कैसे ट्रेड करते हैं, पहला टारगेट, ये जो रेंज की गहराई होती है, दिस इज द डेप्थ ऑफ द रेंज, दिस इज द फर्स्ट टारगेट ऑन द रेंज ब्रेकआउट। ओके, एंड दूसरा टारगेट क्या होता है, रेंज के पहले जो भी लेंथ रहेगा, मार्केट एक कंटिन्यूअसली लेट्स से बुलिश ट्रेंड में ऊपर आया, फिर एक रेंज बनाया, तो वो जो लेंथ है, दैट, यू नो, डेप्थ, दिस इज द टारगेट। सो वो लेंथ टारगेट होता है दूसरा टारगेट। पहला टारगेट रेंज की जो भी चौड़ाई होगी वो होगी, और दूसरा टारगेट उस रेंज के बनने के पहले जो भी एक मार्केट में एक स्विंग आया होगा, जो रेंज के पहले जो एक मोमेंटम आया होगा, वो मोमेंटम की लंबाई जो होगी वो टारगेट होती है, यू नो, दैट इज एक्सपेक्टेड टारगेट, देयर इज नो रूल कि वहां तक जाएगा, बट ऑलवेज लुक फॉर, यू नो, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। यहाँ पे यू सी दिस इज आईआरबी एग्जांपल, आईआरबी का चार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, रेंज था, दिस इज अ रेंज, एंड रेंज का यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे जो लोगों ने एंट्री ली थी इतनी बड़ी, सॉरी, हाँ, इतनी बड़ी कैंडल पे जिन लोगों ने भी एंट्री ली थी, अभी नीचे मार्केट आएगा ना तो उनके उनके लॉसेस बढ़ने लगेंगे, एंड ये डेली टाइम फ्रेम है, यू नो। सो इतना पेशेंस कि सब में नहीं होगा कि वो इतना पोजीशन को होल्ड करके रख सके, यू नो, दे विल कट द लॉसेस, एंड देखो मार्केट ऊपर निकल गया। तो इसीलिए रेंज ब्रेकआउट होते ही ट्रेड नहीं लेना है, लुक फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट हो तो एक स्विंग मिल जाएगा हमें, और वो स्विंग ही हमारा एसएल होगा, उसके थोड़ा नीचे एक बफर में हम एसएल रख लेते हैं, एंड यू नो दिस विल बी गिविंग द टारगेट। पहला टारगेट इज ये जो रेंज की जो चौड़ाई है, द डेप्थ ऑफ द रेंज इज द फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड, इस रेंज के बनने के पहले देर इज अ स्विंग इन द मार्केट, एक रैली हुई थी, एंड इस रैली की लंबाई के एक्सपेक्टेड हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी ट्रेड द रेंज। ओके, ओके, example here, another more example we can see, second, okay, one more example, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट यहाँ पे एक रैली हुई थी, बट दिस टाइम रेंज में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, तो ये जो एरिया है यू सी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, एंड यहाँ पे रीटेस्ट, यू सी मार्केट गिवन ब्रेकडाउन, फिर ऊपर एक बुलिश कैंडल से यहाँ पे मार्केट ऊपर पहुंचता है, देन रिजेक्शन आती है, यहाँ पे यू सी द रिजेक्शन कैंडल हेयर, यू नो, शूटिंग स्टार कैंडल, एंड हेयर यू कैन शॉर्ट, यू नो, एंड यहाँ पे देखो दिस डी इज द, यू नो, फर्स्ट टारगेट, एंड इसके पहले जो रैली हुई थी दिस मच इज द सेकेंड टारगेट। ओके, देन अगेन यहाँ पे एक रेंज बना, देन अगेन ब्रेकआउट हुआ, लाइक दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड द रेंज। ओके, one more important thing, volume should also increase at the time of breakout, but it's not always true। जब भी रेंज ब्रेक करेगा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, वाई, बिकॉज अगर रेंज ब्रेक हो रहा है और वॉल्यूम भी आ रहा है, इसका मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है ये रेंज ब्रेकआउट, पीपल आर लाइकिंग दिस रेंज ब्रेकआउट, उनको, दे आर अग्रीड विद दिस रेंज ब्रेकआउट, सिंपल, राइट। सो अगर मार्केट में ब्रेकआउट रेंज का होता है और वॉल्यूम भी आता है अचानक से, यू नो, जब रेंज बनेगा तो वॉल्यूम, यू नो, अपने आप कम हो जाएगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज, वाई, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड द रेंज, लोगों को रेंज ट्रेड करना अच्छा नहीं लगता, मेजोरिटी को। हु ट्रेड द रेंज, रेंज को कौन ट्रेड करता है, न्यू बीज, फ्रेशर्स, जो लोग नए ट्रेडर्स होते हैं वो लोग रेंज ट्रेड करते हैं, दे ट्रेड एवरीथिंग, उनको कुछ भी दे दो, कहीं भी दे दो, दे विल ट्रेड, एंड दे आर द वन हु गिव मनी टू द प्रोफेशनल्स, राइट, because they don't know the psychology, they do not have a stop loss, they do not know where, you know, they should not trade, they know where to trade but they do not know where not to trade। okay, कहाँ ट्रेड करना है ये जितना इंपॉर्टेंट है पहचानना, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कहाँ ट्रेड नहीं करना है। when the market is in range, never ever try to trade, wait for the breakout and retest। जब भी मार्केट रेंज में हो,
तो कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर रेंज में आप ट्रेड करोगे भी तो पता चल जाता है वाई, क्योंकि आपके एक दो एसएल लगेंगे फॉर श्योर इन रेंज में एसएल तुरंत लग जाएगा, और आपके कंजिक्यूटिव एक या दो एसएल लगे आइदर ऑन इंडिकेटर और प्राइस एक्शन, आपको तुरंत ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए और देखनी चाहिए कहीं रेंज तो नहीं बन रहा है, because most of the time you will see more than 85% this is because of range. मार्केट जब ट्रेंडी नहीं होता है, रेंजिंग होता है, तभी ये सेल्स लगते हैं. ओके, सो when the range is going to give breakout, then only you should enter. So जब भी रेंज होगा you will see the volume will go down. वॉल्यूम नीचे चला जाएगा रेंज में, बिकॉज पीपल इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए नीचे जा रहा है. जैसे ही ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, देन द पीपल विल शो द इंटरेस्ट. नाउ पीपल आर इंटरेस्टेड, अब इधर से रैली आएगी, देन द मार्केट विल गो अप. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ब्रेकआउट होगा और एकदम से वॉल्यूम भी बढ़ेगा. कभी कभी ब्रेकआउट होगा और वॉल्यूम नहीं भी बढ़ेगा, नॉर्मल वॉल्यूम रहेगा और मार्केट ऊपर भी निकल जाएगा. सो डोंट मेक इट एज अ थंब रूल. ओके, sometime at normal volume also the breakout is successful, but the most important thing to keep in mind that volume should not decrease at the time of breakout. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम ठीक है, बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो तो पक्का ऊपर जाएगा. हो सके कभी कभी छोटी वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक होता है लेकिन मार्केट ऊपर निकल जाता है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, वॉल्यूम बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, उसका जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए. अगर वो घटते क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, दैट वॉल्यूम इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रेकआउट के बाद, देन डेफिनेटली इट्स अ ट्रैप. ये ट्रैप था. यहाँ पे देखो, सी द एग्जाम्पल. Here the market given breakout from the range and at the same time volume is also increasing. Here the market given breakout from this range, but the volume is not supporting. The volume is decreasing. There is no increment in the volume. यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है. बट यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के समय तो वॉल्यूम आया, बट ब्रेकआउट के बाद मार्केट की वॉल्यूम फिर से जाने लगा. तो यहाँ पे हमारा एसएल चला जाता है. देर इज नो वे टू नो ये फेकआउट हुआ कि नहीं, दैट ओनली इंस्टीट्यूशंस कैन डिसाइड. हम नहीं डिसाइड कर सकते ये ओरिजिनल रेंज ब्रेकआउट होगा, या हम केवल डिसाइड कर सकते हैं हमारे एसएल. ओके, हम अगर प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट है तो हम थोड़ा पहले एसएल के पहले ही अपना ट्रेल कॉस्ट टू कॉस्ट करके निकल जाएंगे. ओके, but if we are not even that expert, but then we have to give SL, because we are not only giving SL, everybody will give SL. सभी के SL लगेंगे, हमारा नहीं. हर कोई को ट्रैप करेगा मार्केट यहाँ पे. ओके, also while downside breakdown same rule is applicable. नीचे भी ब्रेकडाउन करे, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मीन्स पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्रेकडाउन, सो दिस विल फॉल. बट अगर ब्रेकडाउन कर रहा है और एकदम से वॉल्यूम फिर कम होने लगा, सो डेफिनेटली पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, इट विल बी अ ट्रैप. ये फंसा के अंदर चला जाएगा. इट विल प्रोबेबली हिट योर एसएल. और एक इंपॉर्टेंट, मोर द नैरो इज द रेंज. जितना छोटा रेंज अगर हम ढूंढ पाए, द बिगर विल बी द मूव. जितना छोटा रेंज होगा उतना ज्यादा बड़ा मूव होगा. यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट में वॉल्यूम भी आया बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड. देन अचानक से साइडवेज स्टार्ट हुआ, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. सी वॉल्यूम एकदम से वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो गई. नाउ यू सी मार्केट गिवन ब्रेकडाउन, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया अचानक से, फिर मार्केट में वॉल्यूम आ गया. दिस इज हाउ द पैटर्न शुड बी. ऐसा ही होना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेंज. रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं, रेंज में हमेशा आप वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हो. ऑल्सो आई डोंट ट्रेड वॉल्यूम अलॉट. मैं वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, बिकॉज वॉल्यूम इज मैनिपुलेटेड डेटा, इट्स नॉट अ ट्रू डेटा. जो वॉल्यूम हमें दिखता है वो सही नहीं होता है, दस वी ऑल नो, राइट. सो आई कांट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन द वॉल्यूम. वॉल्यूम पे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता. व्हाट आई ट्रस्ट इज ऑन प्राइस. मैं प्राइस पे ट्रस्ट करता हूँ बिकॉज वो सामने जो भी है वो सामने है. अगर ऊपर जा रहा है तो भी सही है, नीचे जा रहा है तो भी सही है. बट वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो दिस डजंट मीन कि देयर इज अ वॉल्यूम. देयर पीपल मैनिपुलेट द वॉल्यूम को मैनिपुलेट किया जा सकता है. ओके, बहुत ज्यादा. सो आई मोस्टली लुक फॉर प्राइस, एंड इन द प्राइस आई लुक फॉर रीटेस्ट. रीटेस्ट इज द बेस्ट कंफर्मेशन. Okay, my second favorite pattern, bearish flag. What is bearish flag? My favorite pattern. And nowadays you will get a hell lot of trade in the bearish flag. बहुत ज्यादा ट्रेड आपको मिलने वाला है bearish flag में, because markets are again going to go down. मार्केट में एक बहुत बड़ी सेलिंग होगी एंड उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा. दिस इज अ प्लेस वेयर आई एम इंटरेस्टेड. ये मुझे सबसे अच्छा लगता है ये प्लेस. जब भी मार्केट में बहुत बड़ी सेल हो जाती है और मैं उस सेलिंग को मिस कर देता हूँ, आई शुड नॉट वरी, बिकॉज मुझे पता है
कि अगर इस सेल को कंटिन्यू होना है तो इट विल मेक अ कंसोलिडेशन एंड इट विल मेक अ फ्लैग एंड देन इस पे ब्रेकडाउन होगा, आई विल री एंटर। कभी कभी क्या होता है, हम बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज को मिस कर लेते हैं, राइट? Don't worry even if you miss an opportunity. That's why the flag pattern is there. Because एक बड़ी सेलिंग हो गई, don't enter in the middle. I have seen like मार्केट में सेल होता है, लोग यहाँ 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 कहीं भी बीच में सेल करते हैं. Don't even do that. Wait the market to create the flag and short like a boom. The market will go down, and the length of the pole is the target. Okay, this much target you can expect. Doesn't mean कि इतना जाएगा ही, but अचानक से मान लो if the length is 100 points and is going 80 points and वहां पे कुछ bullish confirmations मिल रहे हैं या market higher highs बना रहा है, then exit the trade. Okay, like bearish pattern, bearish flag पे मैंने बहुत ट्रेड किया इस मंथ और इसके पिछले मंथ कंटिन्यूअसली मार्केट वाज फॉलिंग, कहीं पे भी कंसोलिडेशन हो रहा था, वेर एवर इट्स कंसोलिडेटिंग, आई एम शॉर्टिंग द मार्केट कंटिन्यूअसली. This much powerful this pattern was. So bearish flag is the number one pattern in your life from now onward. इस पे आपको काम करना है. Number two pattern, triangle. If you ask me what is the which pattern occurs most in the market, is the triangle. Triangle हमेशा occur करेगा, हमेशा. You will see एक ये पूरा फुल स्क्रीन है ना, उसमें एक ट्राइंगल हमेशा दिख जाएगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा अकर करता है. ट्राइंगल इज व्हाट? इट्स अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स. यहाँ पे देखो, सेलर्स ने मार्केट को पुश करके नीचे लेके आ गए, देन बायर्स ने यहाँ से मार्केट को पुश करके ऊपर लेके आ गए. लेकिन देखो, सेलर्स ने यहाँ पे जो हाई लगाया था, इससे ऊपर बुल्स को लाने नहीं दिया, बिकॉज दे आर अग्रेसिव. सेलर्स बहुत अग्रेसिव है और उन्होंने मार्केट को फिर से नीचे पुश किया, बट बुल्स भी अग्रेसिव है इस बार. उन्होंने ये जो लो लगा, उस लो के नीचे मार्केट को जाने नहीं दिया. दे डोंट अलाउ द मार्केट टू गो बिलो दिस लो. Means this is a fight happening between them. Bears continuously pushing down the market, bulls continuously pushing up the market. In this scenario, we never take a trade. When the triangle pattern is about to occur or it's occurring, we never take a trade. हम triangle पे कभी trade नहीं लेते. जब triangle break कर देता है, then we enter. We know who won the market. किस कौन, who is the winner. So if bulls are winner, they will break upside. Then I enter. Similarly, for all other pattern, there are three types of triangle: symmetrical triangle, ascending triangle, descending triangle. Symmetrical means both side equal pressure. Ascending triangle means bulls are continuously taking market up, but bears are not allowing market to go above this high. This is ascending. Descending is bears are continuously pushing down, but bulls are not allowing to go this market low below this low. I will tell you how to trade this. Okay. This is a theory part. I will share this, to everyone, this document. Okay, means this PDF. Okay, I will share. You can read this. I will directly come to the point. Okay. Okay, one more important thing. Which side the triangle will break? Always remember, triangle is a continuation pattern. Triangle एक continuation pattern है, मतलब पिछला जो trend होगा, it's not a rule, but more than 80% chances are the triangle will give a breakdown or breakout on the same side of the trend. अगर पिछला सेलिंग का ट्रेंड है तो it will give a breakdown. Very high chances are it will give the breakdown. Okay, here you see the example. Also, how I book my profit in triangle. There are different methods to book the profit in triangle. When the triangle breaks, okay, first method is look for the previous demand supply zone, or the important support and resistance. Till there the market will go, no doubt. This is the one way. Another way is draw the Fibonacci. Means see, this is a swing in the market. इस triangle में what is the swing? A, B, C, D. Here you see A, B, C and D. One second. A, B, C, D. Okay, so you see this is A, B, C, D. So what is the biggest swing? A and B is the biggest swing, right? So just connect A, take a Fibonacci tool, connect A to B, and you will able to book when the market will give a breakout, it will try to hit 141 to 161%. First target is 100%, means when you give it a breakout, first target will be 100%. When 100% gives a breakout, put your stop loss cost to cost and look for 161%. This is how I book. You can use the Fibonacci, it's not mandatory. Here you see this Bitcoin example, this latest example. This was the fall, latest fall. You see the market was continuously going down from this area. See, market
shown a aggressive selling here. यहाँ से बहुत जबरदस्त selling आई. Then market try to recover from here. Then again उस area में वापस से गया. This is the supply area from where the aggressive sellers got active. जहां पे पुराने sellers या buyers active होंगे, market में फिर से वहां पे active होंगे. You had heard this dialogue. ये history repeats in stock market, right? But nobody again tell you what is mean by the history repeat in the stock market. History repeat होने का क्या मतलब है? What is mean by the history repeat? Nobody will tell you. I will tell you. What is mean by history repeat means जो भी supply area था, whatever was the supply zone, it will again get activated if it was untouched. See, this was a supply. This supply was never touched. ये supply कभी touch नहीं हुआ था. You see, when the first retest it will do, the sellers will again active. But क्या ये touch करते मैं sell कर दूं? No. Look for more confirmation. Why? Because sometime ये touch करेगा and again it will give a breakout. So that's why whenever market reach demand supply, I look for price patterns. I look for price pattern. And here you see a triangle has been made. Already I'm at supply, means sellers are active here, right? Sellers are more strong here. So chances of selling is more, and you see it given a breakdown and the market went down. यहाँ पे इसने breakdown दिया. Why? Because supply था. यहाँ sellers का area था. Okay. Now ascending triangle. As I told, ascending triangle is a pattern. Okay, where you will put stop loss in the triangle, the nearest swing, this will be your stop loss. यहाँ पे breakdown हुआ, so this is swing is the nearest swing. यहाँ पे हमारा stop loss होगा थोड़ा buffer में. Okay, ascending triangle, the market is continuously, bulls are taking the market up, and here the bears are rejecting, and it given a breakout, and market went up. But I will tell you one thing. ट्राइंगल पे कभी भी भरोसा मत करना, बिकॉज ट्राइंगल दोनों साइड के मोमेंटम देता है, इधर दोनों साइड के ब्रेकआउट होते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. इट्स नॉट लाइक असेंडिंग ट्राइंगल देख के आपने बाई मार दिया, ऐसा नहीं होता है. असेंडिंग ट्राइंगल में भी सेलिंग आती है. आई विल शो यू राइट. डोंट ट्रस्ट ट्राइंगल अ लॉट because it's a very common pattern and we can't trust it blindly. I will show you. See the failure. Market is going up and you see here the market went down. Why? Because jahan pe ascending triangle hai, there is a double, triple, four tops, right? You see double, triple tops. Markets are making a hair rejection, it's like kind of supply, and it given the breakdown. So don't be aggressive in the triangle. Just look for your pattern to complete. Whatever side, if upside it give a breakout retest, then enter. And if downside, if it breaks and retest, enter. Okay, and the previous nearest swing will be your stop loss. Here you see this Bitcoin example over here. This is not just now. This happened, I think, previous month. Market was continuously going up. See, rejection from the supply, rejection from the supply, rejection from the supply, and again rejection from the supply, given the breakdown of this. Now, this breakdown, should you sell? Depends. If you are an aggressive seller, you will take entry here. But if you are I will show you one second. I will take this chart to paint and I will draw you how a smart trader will take entry. If you are aggressive seller, you will sell here after the breakdown, but this is very risky. It can go up and hit your SL. If you are a smart trader, what you will do, mark, as I told, it should show some retest, right? So it went down, and again you see this is the area, this is the zone it came back. You see, I hope you all are able to see the zone. It again came back to the zone, right? It given the breakdown, it given the breakdown. देखो यहाँ से breakdown दिया, नीचे गया, and then retested, you got SL, and you see boom in the market. 1:10, 1:15 up to risk reward you will able to get in such scenarios, right? Because your SL is very, very small and target is like a clear, like a bloodbath, clear fall like a knife. Okay. So this is what you have to look for. Okay. See, descending triangle. Descending triangle, what is the general theory? General theory is market sellers are continuously pushing the market down. Yahan pe sell, again they are pushing down, but bulls are protecting the market. Whenever market coming here, rejection, coming here, rejection, coming here, rejection, and here it given the breakdown, and after the retest you can enter, and the previous swing will be your SL. And whenever guys you get 1:1 risk reward minimum, trail your SL cost to cost after 1:1 always. Okay. I will show you some example. Same BTC example I will show you. Here you see, this is a descending triangle. See, bears are pushing down, bears are pushing down, bears are pushing down.
Bulls are protecting this, this zone here. Support, 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 support. So rule is saying it should go down, but as I told, triangle give both side moment. Rule says it should go down, but there is no such rule like it will only go down. Triangle will give both side momentum. And you see here the market broke and retest and boom, went up. Clear, clear momentum. As I told, it will try to hit the nearest supply, and it's clear momentum. Then again, in the long term, it made again. You see this big one, this big picture, this big picture. It made a descending triangle. See, they are pushing down, 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 and here in this is the level. The market is continuously, taking support, 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 and then it given a breakdown retest from this zone, and boom, right? This is how you have to, take entry. You have to be trading, clear, straightforward, no confusion. Okay, don't simply trade demand and supply blindly or support resistance blindly. Use price pattern, and also not blindly trade price pattern. Make sure your candlestick, your price pattern, whatever you are trading, that should appear on important support, resistance, or demand supply. You can't trade anything anywhere. It have to appear on important levels. Make sure this thing always. Okay, this is my favorite, setup, which I use a lot. Okay, that's why there is no title for this, because see, theoretical things which are, used by everybody have some title, but this is something I made by my own. What I see whenever I see, descending triangle, and when it give a breakdown from a zone, I don't enter. What I do, I wait for the market to retest. First thing, retest and break this low first thing, or sometime what I wait, if it is, going back and retesting this zone plus this trend line, there I again enter. Okay, means breakdown from the zone and retesting, and getting resistance at the same time from the trend line. This is how I trade. I will show you this example. Silver I shorted here actually. 2 months ago, I given, in group I posted I'm going to short silver. Reason was this setup was there in my silver. Okay, market was taking support on this descending triangle. It given this breakdown, obviously I shorted in intraday also, but my big position I loaded up here because my setup was clear. What was my setup? Market again came back to my level. This demand was now supply, plus it's taking resistance from my trend line. Straightforward selling, clear selling. It made a double top formation here. You see the M pattern, like this M pattern. Okay, clear sell, straightforward. And this level, I remember this time the silver was trading 66 or 67,000, 65,000, something like this, and it made 62,000, sorry, 62,000, 62,800, something like that it was trading, and it made a low of 56,000 from here. Continuously sale from this point. Okay, this is how you can use this setup. What is the setup? Market descending triangle setup. Market will give the breakdown. I will wait for my retest. This retest is double confirmation retest. One is from zone, one is from trend line. Boom, short it, short it. You know, if market will come here, I will not be a buyer. For example, here this is a demand zone. It's going up. I will not be a buyer. I don't like buying. You will hardly see I give a buying call. Even when I am taking, giving some, it's not a call. When I take entry, I just share it to all of you. I'm doing this, but I hardly buy. I mostly sell. Whenever the market is at my level, I sold. Whenever it's in buying, I wait. Whenever it's go for buying, I left. I simply leave the trade. I simply leave the trade. I wait for my setup to occur, and boom, short, make money, easy money. Wedge pattern. A wedge is a variation of triangle. In triangle, these 2 points are touching each other. In wedge, they are not touching each other. Simple. Wedge pattern is again two type: rising wedge and falling wedge. See, this is called rising wedge, and you see, rising wedge is what? When the market is going up, jab rising wedge banega, we will look for breakdown. We will look for selling opportunities. This is just like a triangle, but these points are not connected. Okay, you see, this is called, rising wedge. Market is going up, then it gives the breakdown. This corner will be the SL, previous swing, and short. Falling wedge. Falling wedge is like market is falling, then it will make this kind of wedge structure like a triangle, but this is not a triangle. It's a wedge. Give a breakout, then boom, market went up. Okay,
Again, the falling wedge, boom, market went up. I will show you some examples. See, this is rising wedge, breakdown. Rising wedge always give breakdown. You see, rising wedge given breakdown, falling wedge given breakout, falling wedge here you see, the falling wedge failed. Falling wedge give breakout, but there was a supply, so it get failed. So price pattern भी fail होते हैं. Okay, so that's why price pattern is alone not important. It is important at a particular zone. अगर price pattern डिमांड पे बनता है, लेट्स से दिस इज अ बुलिश पैटर्न, बट व्हाई? बिकॉज सी हियर, यहां देखिए, दिस इज अ बुलिश पैटर्न, फॉलिंग वेज, इट गिव ब्रेकआउट. अभी ये फॉलिंग वेज बना है सप्लाई पे, सो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ व्हेन द टू थिंग्स आर गोइंग अपोजिट ऑफ ईच अदर, डोंट ट्रेड. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ट्रेड, बिकॉज इट कुड बी अ ट्रैप. इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? यू कैन ट्रेड इट लाइक अ हेड एंड शोल्डर, लाइक लेफ्ट शोल्डर, then this is the head and right shoulder. ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हो, बट यू कांट ट्रेड इट लाइक अ वेज. ओके, अभी मुझे हेड एंड शोल्डर कैसे दिखा? बिकॉज आई हैड गिवन दैट मच टाइम टू माई चार्ट, सो मुझे दिखेगा. माइट बी यू विल नॉट एबल टू सी दैट, और माइट बी आपको दिख भी जाए, डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, लेवल ऑफ प्रैक्टिस यू डिड. ओके, यहाँ पे देखो एक चैनल है, चैनल आई विल कवर लेटर. ओके, सो यहाँ पे सी अगेन देयर इज अ फॉलिंग वेज गिवन अ ब्रेकआउट, here is a falling wedge given a breakout, right? Means I am just saying, पैटर्न्स आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आपको पैटर्न समझ लेना है, किसके एसएल्स कहाँ आते हैं, टारगेट्स कहाँ आते हैं, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस. हियर यू सी देयर इज अगेन अ राइजिंग वेज ब्रेकडाउन, राइजिंग वेज ब्रेकडाउन, फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, लाइक अग्रेसिव, लाइक अ मशीन यू शुड ट्रेड. मशीन के जैसे ट्रेड करना. पैटर्न बूम, एसएल टारगेट, एसएल टारगेट, एसएल टारगेट, लाइक दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड. 1 minute. Okay. Okay, similarly here triangle, this document I will share to all of you. You can see how this is traded and ask me the question. Now cup and handle pattern, very powerful pattern. Okay, cup and handle, very powerful pattern. This is one pattern. There are some of the well known Indian trader, I know them, केवल इसी पैटर्न को ट्रेड करते हैं. whenever they see there is a round and there is the market taking curve, like there is a rounding bottom and the market is slowly taking a pullback. This pullback could be the 1/3 of the total length, okay, maximum, or usually then it gives a breakout, they enter. It also look like a flag and pole structure, right? This is a pole and this is a flag. This is how they enter in the market. And where is the stop loss? This swing will be the stop loss. Let's say it give the breakout from this handle, then this previous swing will be your stop loss in this case. What is the target booking in the flag and pole? The target, sorry, in the cup and handle, depth of the cup is the target. Means whatever the depth is there, that same depth after breaking will be the target. Make sure जब भी आपको कोई भी ऐसा पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे मिल जाए जिसमें आपको कप एंड हैंडल देखने को मिलता है, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट, इन्वेस्ट इट. व्हाई? बिकॉज कप एंड हैंडल के टारगेट इस पूरे प्लेनेट में सबसे बड़े टारगेट्स होते हैं इन द प्राइस पैटर्न. प्राइस पैटर्न में ऐसा कोई भी पैटर्न कप एंड हैंडल के मैच का ही नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट द टारगेट, cup and handle gives the maximum target, because जितना गहरा ये कप होगा, the bigger the depth, the more the depth, the more will be the target after the breakout. So never ever miss the cup and handle pattern. और आप for the Indian stock market you can figure out what are the patterns in the cup and handle, which stocks are making cup and handle. Simple Google में जाके सर्च करना है stocks making cup and handle and just enter, boom, you will find multiple links. आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें बहुत सारे नाम्स होंगे, कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होगा. जस्ट चेक इट आउट योरसेल्फ. so this is how you can figure out कहाँ पे कप एंड हैंडल बन रहा है. but never miss any big cup and handle pattern. okay, here you see. on one more important thing, cup and handle में if it is a bullish cup, make sure कि इसके पहले का जो ट्रेंड है वो अप हो. if the
आपको कप एंड हैंडल में कुछ चीजें ध्यान देनी है. इन द बुलिश कप एंड हैंडल यू हैव टू सी few important things. First thing, previous trend should be uptrend, because cup and handle is a continuation pattern. The previous trend, if is an uptrend, then cup and handle बना के break करेगा, then definitely it will go up. If the previous trend is not an uptrend, it will not go. One second. Hey guys, some students were facing issues in joining the link. I was just helping out. Okay. हाँ. So you see the previous trend should be an uptrend. उसके बाद एक cup बनाया, then the handle you see the given the breakout, this depth of the cup will definitely go. Okay, this will be the target. Okay. See inverted cup and handle, the same thing. Inverted cup, market will go down, make a handle and give a breakdown. Example here you see GBP, market was falling, make an inverted cup. अभी जैसा the pattern you seen in the textbook, the pattern you see in the chart will not you will see in the real market. थोड़ा सा आपको अपने से सोचना पड़ेगा. The market is making a curve, making a handle, then it gives a breakdown. You see the market fallen again, it see retested the same supply zone, and there you can short again, and boom, market went down. Okay. Okay. Now head and shoulder pattern. Head and shoulder is very 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 important pattern. Why? Because it's have the more accuracy compared to any other pattern. I will directly jump and show you. This is called head, this is called left shoulder, this is called right shoulder. Okay. And when you connect all of them, this will make a neckline. ये एक neckline बनाता है. जब भी इसमें right shoulder के नीचे breakdown हो, you can short. Right shoulder will be your SL. You see, this is an example, is going down. Okay. Similarly, inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder is what? Market will make a shoulder, then head and shoulder. And when it give a breakout, this previous shoulder will be your stop loss and you will enter in the trade. It will be good if you enter on the retest. Okay. Like for example, here we not got any retest in US oil. Okay. But it went up. The market went up obviously. Okay. So it depends. If you wait for a retest, you can wait for a retest. And if you aggressive, depend on the day or other time frame your analysis, you can enter here with a small quantity without a retest. But your risk will be more when you are entering without a retest. But sometime market will not retest. When this market is impulsive, it will go up. मार्केट रीटेस्ट हमेशा नहीं करेगा. ओके. जब मार्केट में बहुत जोर का मोमेंटम आएगा, इट विल डेफिनेटली गो अप. यू हैव टू यूज योर ब्रेन, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, बिकॉज यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, सो यू विल सी कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, सो दिस इज अ कंफर्म एंट्री, राइट. देन हेड एंड शोल्डर भी था. ओके. वन सेकेंड.
Okay. Now double top pattern, very important pattern. Okay, what is double top pattern? This is one of my favorite pattern, this double top. Okay, I will simply jump in an example and will show you. Double top pattern is nothing but is a pattern where the market made same top. जैसे example यहाँ पे see the sellers were active, market यहाँ पे sellers active हुए थे और इन्होंने market को एक झटके में push करके यहाँ तक ले आया. Then it took a pullback and देखो is again it went it's continuously falling. इसके बाद ये फिर fall किया. Then when it reach back to this zone, okay, and it made a double top, wait for a trend line confirmation, and then you can re-enter at the same place. We can't. Okay. So whenever the market will reach, जब भी market same position पर आता है, again जहाँ से एक लंबी selling चली थी, so it will again go for same selling, but यहाँ आते short नहीं कर देना है. Why? Because it will break and go up. Wait for a trend line confirmation. Okay. So यहाँ पे see trend line का breakdown होते ही चला गया and you never get a confirmation. So probably you will miss the trade. ये trade नहीं मिलेगा because it never retested, right? आपको ये trade नहीं मिलेगा in that case. No issues. You have to leave the trade. But if you are aggressive trader, अगर आपको यहाँ पे shooting star या कुछ और confirmations मिलती है, then you can short it at this level. Okay, your SLs will be very low at that point of time. This is the beauty of this double top pattern. Also, I will show you the double top pattern over here. Here you see double top pattern. Market was in uptrend, then here the selling started. Market was in the again started selling. Again market went up. Same place पर आके market अब देखो यहाँ पे how you can know कि यहाँ से market नीचे जाएगा. Nobody knows. Why? Because sometime it will move here 10 minute, 15 minute or 1 hour, then it will give breakout. So look for price pattern here. See यहाँ पे जाके okay, यहाँ पे जाके you see here at this place 1 minute. Okay, at this place यहाँ पे जाके you see what is the way to confirm this trade. यहाँ पे जाके इसने descending triangle बनाया. It made a descending triangle and then given the breakout यहाँ पे आपको entry ले लेना. If you are not sure how to enter here, you can enter here. Okay. Okay, double bottom pattern. सिमिलरली डबल बॉटम में क्या होता है, एक डब्ल्यू के जैसा पैटर्न होता है. जैसे ही स्नेक लाइन को ब्रेक करता है हम एंट्री लेते हैं एंड स्टॉप लॉस इस पूरे लंबाई का 50% तक स्टॉप लॉस होता है. और जैसे जैसे टारगेट हमारे फेवर में आता है एंड वी कंटिन्यूअसली ट्रेल आवर एसएल को ऊपर करते जाते हैं एंड कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते हैं जब मार्केट हमारे फेवर में चला जाए तो. ओके, सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड रेक्टेंगल डबल बॉटम. रेक्टेंगल डबल बॉटम क्या है, यहाँ पे नीचे एक ब्रेकडाउन, मतलब ये देखो ये बॉटम बन रहे बट एक बॉटम जो है वो इस बॉक्स में फिट नहीं होगा. मीन्स वन बॉटम विल नॉट फिक्स इन दिस बॉक्स. Okay, this is a here you see in this case the initial bottom develops after a very sharp panic decline. यहाँ पे बहुत पैनिक सेल आया लेकिन अचानक से मार्केट ऊपर चला गया, एक रेंज बनाया, लाइक मल्टीपल बॉटम्स बनाए फिर ब्रेक करता. तो ऐसे सिनेरियोस को भी हम डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पकड़ सकते हैं या फिर एक रेंज ब्रेकआउट में भी ट्रेड कर सकते हैं. सेम सिनेरियोस. हियर यू सी द डबल बॉटम का एग्जांपल. मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया एंड यहाँ पे आके हियर यू सी यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट नहीं हुआ. यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया बट इट मार्केट अगेन पुश, सेलर्स ने मार्केट को पुश कर दिया. देन यहाँ पे सी एक स्विंग बना के इसने जब ब्रेकआउट किया तो अपने को एक स्टॉप लॉस मिल गया बहुत छोटा सा टू एंटर एंड हियर वी कैन एंटर एंड यू सी द मूव. ओके. अच्छा, ब्रॉडनिंग वेज. दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न विच आई डोंट यूज अलॉट बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडनिंग वेज होता क्या है. यहाँ पे मार्केट क्या होगा, नीचे मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा. ये दिस विल कीप ब्रॉडनिंग, ये चौड़ा होते चला जाएगा.
ओके, एंड आइदर ऑफ द साइड इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, किसी भी एक साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, व्हेन इट रीटेस्टेड यू कैन एंटर. बट दिस इज अ वेरी रिस्की पैटर्न बिकॉज हु नोज विच साइड इट विल गिव अ ब्रेकडाउन, किधर भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है. रीटेस्ट इज द बेस्ट वे. एंड सम पीपल इंट्राडे ट्रेडर व्हाट दे डू कि यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल एक ब्रॉडनिंग टच करके आया, अब उनको पता है कि अगला टच इधर होने वाला है, स्टे शॉर्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर बिकॉज दे हैव अ स्मॉल एसएल, यहाँ पे छोटा एसएल लगा के शॉर्ट कर देते हैं यहाँ तक के लिए. ऐसे भी कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं इसको. ठीक है, आई डोंट ट्रेड इट अलॉट. ओके, मैं एक और सेलिंग सेटअप बताता हूँ. दिस इज अ अग्रेसिव सेलिंग सेटअप. इसमें एसएल जा सकता है बट दिस इज अ वेरी गुड सेलिंग सेटअप. इस सेलिंग सेटअप को कैसे करना है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है. उसके बाद क्या होगा, मार्केट में वी विल नोटिस कि मार्केट में जो कंटिन्यूसली हाईज ऊपर शिफ्ट करे थे, मार्केट ने उसको उस हाईज को ऊपर शिफ्ट करना बंद कर दिया. मार्केट इज नो मोर मेकिंग अ न्यू हाई, फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई. ये होना चाहिए. डाउन ट्रेंड के लिए कंडीशन क्या है, मार्केट के हाईज नीचे शिफ्ट होने चाहिए और लोज नीचे शिफ्ट होने चाहिए. हाई शिफ्ट नीचे हो चुका है, बस लोज और शिफ्ट इसके नीचे हो गया, आई कैन एंटर. एंड यहाँ पे उसी जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को किया ब्रेक, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हम एंटर नहीं करेंगे. इस लो को भी जैसे इसने ब्रेक किया तो दो कंफर्मेशन हमारे पास है. वी हैव टू कंफर्मेशन. वन कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ और दूसरा कंफर्मेशन की जो लो था अब मार्केट उस लो को भी ब्रेक कर चुका है. तो दिस इज 100% श्योर मार्केट इज नाउ मेकिंग लोअर लोस. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्विंग का एसएल लगा के शॉर्ट कर सकते हैं एंड यू विल मेक अ बिग मूव. बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स इसमें बुक कर सकते हैं. ओके, सो आई होप इतना क्लियर था एवरीवन. दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न. अभी मैं रीटेस्ट के बारे में बताता हूँ. हर पैटर्न कहाँ पे रीटेस्ट करता है, वेयर ऑल द पैटर्न कैन रीटेस्ट. यू सी दिस इज अ चैनल. तो जब भी चैनल ब्रेक करेगा, सो ये देखो ब्रेकआउट के पास जो सबसे नियरेस्ट स्विंग है वहां पे रीटेस्ट होता है. इट विल रीटेस्ट एट द नियरेस्ट स्विंग. दिस इज अ बुलिश चैनल. मार्केट यहाँ पे सी गिवन द ब्रेकडाउन रीटेस्ट इट विल हैपन एट द नियरेस्ट स्विंग. इस सबसे नियरेस्ट स्विंग के सामने यहाँ पे देखो रीटेस्ट होता है. फ्लैग में सी इट गिवन अ ब्रेकआउट, इसके सबसे नियर ये वाला स्विंग है, इसके पास इट विल डू अ रीटेस्ट. वेयर इज फ्लैग, सी ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद व्हाट विल बी द रीटेस्ट, ये नियरेस्ट स्विंग के पास ये रीटेस्ट. डबल टॉप, सी गिवन द ब्रेकडाउन, यहाँ से जो एम पैटर्न है इसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ एंड रीटेस्ट होता है उसी के पास. नियरेस्ट स्विंग ये वाला है, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ. डब्ल्यू पैटर्न गिवन द ब्रेकआउट, नियरेस्ट स्विंग ये वाला है, हियर इट विल टू का रीटेस्ट. हेड एंड शोल्डर गिवन द ब्रेकडाउन, नियरेस्ट स्विंग ये सारे हैं, यहाँ पे होगा एक रीटेस्ट. इनवर्स हेड एंड शोल्डर गिवन द ब्रेकआउट, नियरेस्ट स्विंग ये सभी हैं, यहाँ पे होगा रीटेस्ट. फॉलिंग वेज यहाँ पे दिया ब्रेकआउट, नियरेस्ट स्विंग ये वाला है, यहाँ होगा रीटेस्ट. हियर इट विल अकर रीटेस्ट. ये यू सी राइजिंग वेज, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, इट गिवन अ ब्रेकडाउन, नियरेस्ट स्विंग ये वाला, यहाँ पर रीटेस्ट एंड फॉल. असेंडिंग ट्राइंगल गिवन ब्रेकआउट, नियरेस्ट स्विंग इज दिस, यहाँ पे रीटेस्ट. डिसेंडिंग ट्राइंगल गिवन ब्रेकडाउन देता है, यहाँ पे दिस द नियरेस्ट स्विंग, रीटेस्ट. दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड रीटेस्ट क्या हो सकता है. ये डॉक्यूमेंट मैं सभी को दे दूंगा. आई नो ये बहुत लोगों के या तो सिस्टम में पड़ा रहेगा या तो फिर उनके मोबाइल फोन में पड़ा रहेगा, बट प्रिंट आउट कोई भी नहीं करेगा. जो प्रिंट आउट करेगा इन 2023-24 जो काम करेगा, ही विल बी अ ट्रेडर. ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रीडम उसको मिलेगा. एंड जो भी काम नहीं कर रहा होगा, बिलीव मी, वो हमेशा गोल सेट करेगा टिल 2023 टू 2024. यहाँ से ट्रेनिंग, फिर वहां से ट्रेनिंग, यहाँ से ट्रेनिंग, वहां से ट्रेनिंग. और जो चीजें मैं बता रहा हूँ 10 साल बाद जाके वो भी यही चीज बोलेगा कि देयर इज नो होली ग्रेल. बस मुझे एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना था, उसको मास्टर करना था और उसको बैक टेस्ट पूरा क्लियर करके लाइव मार्केट में लगातार मुझे उसको टेस्ट करना था. यू नो, दिस इज द रियल होली ग्रेल. और कुछ होली ग्रेल नहीं है. यू नो, एंड ही विल मेक मनी. सो आई एम सेइंग द बेटर ट्रूथ, बट दिस इज व्हाट आई वेस्टेड माई सेवरल ईयर्स. आई डू नॉट वांट यू गाइस शुड वेस्ट. जिनका वेस्ट हो चुका है और वेस्ट मत करो. जिनका हो रहा है, कीप स्टॉप योर, यू नो, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. ओके, डू सम प्रोडक्टिव ट्रेडिंग. अगर ट्रेडिंग को सच में रियल टाइम, अगर साइड इनकम बनाना है, डोंट ट्रेड. डोंट ट्रेड. अगर ट्रेडिंग इज योर साइड इनकम, डोंट ट्रेड. इन्वेस्ट करो. बाई अ स्टॉक, एनी स्टॉक इन द निफ्टी 50 एंड फॉरगेट इट फॉर नेक्स्ट 30 years. ओके, ऑब्वियसली दैट विल ग्रो. आज जो भी स्टॉक है वो 30 साल बाद ऊपर ही जाएगा अगर वो निफ्टी 50 का स्टॉक है. बाई एनी गुड स्टॉक और एनी स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 50, इन्वेस्ट एंड स्लीप for 30 years.
Don't dream about to be a trader. Trading is not that easy. Okay, simple. अगर सिंपल सिंपल करना है, डोंट डू ट्रेडिंग. अगर ट्रेडर बनना है, लाइफ विल बी वेरी टफ फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years. लॉट ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस आएंगे. ठीक है, बहुत काम करोगे बट यू विल गेट नथिंग. इवन आपको देना पड़ेगा. ओके, टू उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे पैसा मिलता है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे टॉर्चर से गुजरना पड़ता है. दैट्स द रियल ट्रूथ, जो कोई नहीं बताएगा. जो सभी लोग सक्सेस दिखाते हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए जो पेन होता है, दैट इज द रियल ट्रूथ. वहां उस पेन तक आप सर्वाइव कर पाओगे, दैट डिपेंड्स. ओके, सो अगर जो 100% क्लियर है उसको ट्रेडर ही बनना है, ही विल सर्वाइव द पेन एंड विल बिकम द ट्रेडर. और जो साइड इनकम के लिए आया है, वो ऐसे भी चला जाएगा. वो 1 मंथ में जाए, 2 मंथ में जाए, 10 मंथ में जाए, मार्केट खुद उसको हटा देगा. दैट्स द रियल ट्रूथ. ओके, सर्वाइव वही करेगा जो जिद पे है कि आई विल बी अ ट्रेडर, चाहे कुछ भी हो जाए. आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस. ओके, सो जो सेक्रीफाइस करेगा, मेहनत करेगा, ही विल बिकम अ ट्रेडर. डजंट मैटर ही हैज दैट IQ लेवल इक्वल टू आइंस्टाइन का IQ है उसके पास. यू नो ही इज स्मार्ट, ही इज नॉट स्मार्ट, डजंट मैटर. हियर व्हाट मैटर इज गेटिंग वन सेटअप, बैक टेस्टिंग एंड फ्रंट टेस्ट. एवरी डे सेम सेटअप कंटिन्यूअसली लगाओ, ट्रेड करो, लगाओ, ट्रेड करो, नो इमोशंस. स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट फॉर नेक्स्ट 100 ट्रेड्स. देन ओनली यू विल एबल टू मेक मनी. Okay, now I will teach you something patterns within the candle. कैंडल के अंदर क्या पैटर्न बनते हैं मैं आपको बताता हूँ. This is nobody so far had taught about talk about this you know लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. मुझे इस लेवल पे भी चीजें दिखाई देती हैं जो आपको नहीं दिखाई देती है. जब भी ट्विजर टॉप बनता है, जब एक जैसे जुड़वा कैंडल जिसको हम बोलते हैं ट्विजर टॉप, व्हेनेवर ट्विजर टॉप सकर, अंदर में छोटे टाइम फ्रेम पे ये वाला पैटर्न बनता है, दिस पैटर्न. ओके, जब हैमर बनता है, हैमर हैमर, एट द सेम टाइम यू विल गो इन द चेक इन द लोअर टाइम फ्रेम, मोस्टली यू विल फाइंड वहां पे हेड एंड शोल्डर बनता है. ये जो वीग है उसका हेड होता है, और ये लेफ्ट शोल्डर होता है, ये राइट शोल्डर होता है. हैड यू एवर सीन द हैमर दिस वे? नो, राइट. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. इट विल कम ओनली व्हेन यू डू रिसर्च. जब आप वर्क करोगे, जब आप चीजों को पलट पलट के अपने तरीके से देखोगे, यू विल कीप फाइंडिंग इट. नोबडी टोल्ड मी दिस. मैंने खुद से इसको फाइंड किया है कि यहाँ शूटिंग स्टार, व्हेन देयर इज अ शूटिंग स्टार, आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो, देयर विल बी हेड एंड शोल्डर. व्हाई? दिस विल बी द विग and this will be the shoulder, and this wig is the head, and this left and right is the shoulders. This 100% ऐसा जरूरी नहीं हो कि एकदम अच्छे से बने, बट ऑलमोस्ट इसी काइंड का फॉर्मेशन बनता है. तब हायर टाइम फ्रेम पे ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं. when you see the harami pattern, for example, एक बुल के इन द बुल के पेट में एक बेयर का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो इस टाइप का जो पैटर्न होता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे कि देयर इज अ ट्राइंगल जिसका ब्रेकडाउन हो सकता है. सी, यहाँ पे अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं, सो इट्स लुक लाइक अ ट्राइंगल इन द लोअर टाइम फ्रेम. इट लुक लाइक अ ट्राइंगल, सी, इन द लोअर टाइम फ्रेम. ओके, और ऐसा ट्राइंगल जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो प्रोबेबली इट विल लीड फॉर सेलिंग. ये ट्राइंगल अभी मैंने बताया था कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो सेल आ सकती है. सिमिलरली बुलिश हरामी, बेयर के पेट में बुल का बच्चा, राइट. द मार्केट बुलिश हरामी में मार्केट ऊपर जाता है. क्यों ऊपर जाता है? बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में यू विल सी अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल रहेगा जो ऊपर ब्रेक कर सकता है, एंड व्हेन इट ब्रेक्स, यहाँ पे भी ये ऊपर निकलने लगता है. ओके. ये वाला पिक्चर आज मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था. I want everybody of you should either print and have in front of your desk. ओके, आपको इसको प्रिंट करके अपने डेस्क के पास रखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कभी भी एक ट्रेडर नहीं बन सकते अगर आप इन जोन्स में आ जाते हो. तो मेक, अगर आप अपने लॉसेस को इस फर्स्ट 2 स्लॉट्स में रखते हो फॉर द होल लाइफ, मतलब आप कभी भी 1% से ज्यादा लॉस नहीं काटते हो. आपके एसएल हमेशा 1% ही होता है. आपके पास अगर 100 रुपए है तो आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए का होता है, हर बार 1 रुपए का होता है. तो उस लॉस को आप एक ट्रेड में कवर कर लोगे. वाई? बिकॉज 1% का लॉस को कवर करने के लिए आपको 1% का प्रॉफिट करना पड़ेगा. 5% तक के लॉसेस को 5% तक के प्रॉफिट से कवर किया जा सकता है. अगर आप 5% तक भी लॉस करते हो, आपके पास 100 रुपए और आपका एसएल 5 रुपए का आता है, तो उसको अगर आप मान लो आपके 5 रुपए लॉस भी हो गए और अगले ट्रेड में आप फिर से एक प्रॉफिट कर लेते हो, तो आप उस 5 रुपए का लॉस को आराम से कवर कर लोगे. लेकिन जहां आपने 10% से ज्यादा का लॉस स्टार्ट किया, उस लॉस को आप कभी कवर नहीं कर पाओगे. याद रखना ये बात.
अगर मान लो आपने 50% लॉस कर दिया, मतलब आपके पास 100 रुपए थे और आपने 50% लॉस कर दिया, तो वापस से आपके 100 रुपए बन गए 50 रुपए, उस 50 रुपए को वापस से 100 रुपए बनाने के लिए उस 50 पे आपको 100% का प्रॉफिट लाना पड़ेगा, तभी वो 50 डबल होके 100 हो पाएगा। मतलब जैसे जैसे आपका कैपिटल खत्म होगा उसको कवर करना और नामुमकिन होता ही चला जाएगा। इसीलिए आपको लॉसेस काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 1 से 5% के अंदर अपना लॉस अगर नहीं काटते हो, तो अगर आपका लॉसेस बढ़ते ही चला जाता है तो आप उस लॉस को कभी जिंदगी में कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपके 90% का अकाउंट लॉस हो गया, मतलब आपके 100 रुपए थे और 90 रुपए लॉस में चले गए, 10 रुपए ही बचा हुआ अकाउंट में, उस 10 रुपए को 100 रुपए आप कभी नहीं पहुंचा सकते वापस से। आपको अगर पहुंचाना है तो आपको 900% रिटर्न लाना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक बिगिनर के लिए। अगर आप इतने ही प्रो ट्रेडर होगे तो आप इस लेवल पे ही नहीं पहुंचोगे। सबसे पहली बात, आप बोलोगे नहीं सर मैं तो 900% का रिटर्न बना लूंगा, आई एम अ प्रो ट्रेडर। फर्स्ट थिंग, इफ यू आर अ प्रो ट्रेडर, व्हाई यू आर सिटिंग इन 90% लॉस? अगर आप प्रो होगे तो आप 1 से 5% के अंदर ही अपना लॉस काटोगे, उससे ज्यादा अकाउंट का लॉस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड। अगर आप 10,000 रुपए में ट्रेड करते हो, $100 में ट्रेड करते हो, $10 में ट्रेड करते हो, उसका 1% से ज्यादा लॉस नहीं देना। एक लॉस आपको चुनना पड़ेगा, आप उतना से ज्यादा लॉस नहीं दे सकते। दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द टाइम। अब मैं एक लास्ट चार्ट बताता हूं, उसके बाद हम सेशन को कर देंगे क्लोज। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस। पूरे का पूरा ट्रेडिंग का फंडा यहाँ पे है। द होल ट्रेडिंग समरी इज हेयर। जो बंदा इसको समझ गया वो ट्रेडर बन गया। जस्ट कीप इन माइंड। अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में काम करते हो, ध्यान से देखो इस चार्ट को, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में काम करते हो, मतलब अगर आप 10 रुपए के एसेट लगाते हो और आपके टारगेट 10 रुपए के होते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए 60% सही होना पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी 60% की होनी चाहिए। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 6 ट्रेड अगर आपके फेवर में जाती है और 4 ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाती है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। लेट्स अज्यूम कि आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 10 रुपए के टारगेट पे काम करते हो। अगर आप 6 बार सही होते हो, और मान लेते हैं पहली 50%, यहाँ ब्रेक इवन लिखा है, मतलब यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होगा। मान लो आप 10 रुपए का प्रॉफिट और 10 रुपए के लॉस पे ट्रेड करते हो, और 10 ट्रेड आपने लिए और आपने 50% की एक्यूरेसी गेन की, मतलब आपके 10 में से 5 ट्रेड हो गए सही और 5 ट्रेड हो गए गलत। जो 5 सही ट्रेड होंगे उसमें आपके 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, और जो 5 गलत ट्रेड होंगे उसमें आपके 50 रुपए का लॉस होगा। तो आपको नेट टू नेट कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ? जीरो। इसलिए मैंने लिखा है ब्रेक इवन, दैट्स व्हाई आई मेंशन ब्रेक इवन। ओके, अगर 10 में से मान लो 6 ट्रेड आपके सही होते हैं और 4 ट्रेड होते हैं आपके गलत, मींस 6 ट्रेड्स आर राइट, 4 ट्रेड्स आर रॉन्ग, तो 6 ट्रेड में 10-10 रुपए करके अपने प्रॉफिट बनाए होंगे, तो 60 रुपए का हुआ प्रॉफिट, और 4 ट्रेड जो गलत थे उसमें हुआ 40 रुपए का लॉस। आपको नेट टू नेट 60 माइनस 40 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मतलब आप 1:1 में ट्रेड करते हो। अगर आपके 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और 10 रुपए पे ही टारगेट लेके निकल जा रहे हो आप बार बार, तो आपको ट्रेडर बनने के लिए, आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड में बना रहने के लिए 60% ऑफ द टाइम सही होना होगा। दिस इज नॉट इजी। 60% सही होना इज नॉट इजी। अब हर बार 10 में 6 बार सही नहीं हो सकते। दिस इज स्टॉक मार्केट। अगर आप 1:2, दिस इज द टेबल। अगर जिस बंदे को ये टेबल समझ में आ गया उसको ये समझ में आ जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, 1:2, जो बंदा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता है, मीन्स अगर आप 10 रुपए का एसएल लेते हो और 20 से कम में प्रॉफिट नहीं लेते हो, तो आपको 40% ऑफ द टाइम, 40% ऑफ द टाइम यू हैव टू बी एक्यूरेट। अगर आप 10 में से केवल 4 ट्रेड आपके सही जाते हैं और 6 ट्रेड गलत होते हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। क्यों? लेट्स से कि आपके 4 ट्रेड सही हुए। ओके, आपके 4 ट्रेड सही हुए, आपको 20 रुपए करके 4 ट्रेड ने 80 रुपए का प्रॉफिट करवाया, और 6 ट्रेड गलत हुए, मतलब 60 रुपए का लॉस हुआ, फिर भी आप 20 रुपए का प्रॉफिट में हो गए। मतलब जो बंदा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में काम करता है उसको 60% मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। वो 40% भी लाएगा तो वो पास हो जाएगा, ही विल बी अ ट्रेडर। और जो बंदा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड में काम करता है उसको केवल 100 में 30% ही लाना है। एग्जाम का सोचिए कि एक एग्जाम आप दे रहे हो, लेट्स एग्जाम, स्कूल का एग्जाम हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है। अगर उस एग्जाम में मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा चीज है,
मतलब आपको पास होना है। पहला तरीका, आप 100 में 60-80% लाओ, आप पास हो जाओगे, ठीक है। बट 80% लाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बंदा 30% लाएगा वो कम मेहनत करके भी 30% लाएगा। जैसे कि 30% जो ला रहा है जो बंदा, वो बंदा 2 घंटे पढ़ाई करता है हर दिन, और जो जिसको 80-60-70% 60% या उससे ज्यादा लाना है, उसको 10-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके वो 60 ला पाएगा। बिकॉज 60 लाना बहुत टफ है, बिकॉज ये गेम है। एनी टाइम गेम बदल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने तैयारी की तो आपके 6 ट्रेड सही ही जाएंगे। तो सोच के देखो, आप 60-50 को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं कंट्रोल कर सकते आप कि मैं 60% सही हो जाऊं। आप ट्राई कर सकते हो कि 10 में 6 सही जाए। आप 10 में 6 सही हो गए, ये आपके हाथ में नहीं है, राइट। तो एक्यूरेसी आपके हाथ में नहीं है, विन रेट आपके हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, सिचुएशन टू सिचुएशन। बट क्या आपके हाथ में है, वो है रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप 1:3 पे काम करते हो और मान लो 10 में से केवल 3 ट्रेड आपके फेवर में गए, तो भी आप पैसा बना लोगे स्टॉक मार्केट से। कैन यू बिलीव, 10 में 3 बार तो कोई भी सही हो सकता है स्टॉक मार्केट में। 10 में से अगर आप खाली केवल 3 बार सही हो जाते हो और 1:3 पे काम करते हो, यू विल इजीली मेक मनी। आपको ऐसा कोई जादुई सेटअप नहीं चाहिए जो 80% सही हो। आप 10 में से ब्लाइंडली एक अंधे की तरह भी ट्रेड करोगे, तो 10 में 3 ट्रेड तो आपके सही होने ही होने। इतना भी कम अनुभव आपको नहीं है, या इतना भी कम नॉलेज नहीं है कि 10 में 3 ट्रेड सही नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो 3 ट्रेड 1:3 हुए, तो अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड में काम करते हो, केवल 3 ट्रेड सही कर देते हो और 7 ट्रेड भी गलत करते हो, यू विल बी एंडिंग इन प्रॉफिट। अगर आप 1:4 में काम करते हो, लेट्स अज्यूम कि आप एक 10 रुपए का एसएल लगाते हो और 40 रुपए से कम प्रॉफिट नहीं लेते हो, आप अगर 10 में से 10 ट्रेड आपके गलत हो गए, फॉर एग्जाम्पल 10 में से आपके 20% एक्यूरेसी है, मतलब 10 में से केवल 2 ट्रेड सही हो, 8 ट्रेड गलत हो जाए। 8 ट्रेड, कैन यू इमेजिन, 8 ट्रेड तो किसी का गलत नहीं होता है। अगर आप अंधाधुन डेली 10 मार्केट खुलते ही 10 में से 10 दिन केवल आप अंधाधुन बाई करो, मतलब उठो बाई करो, उठो बाई करो, उठो बाई करो, उठो बाई करो, तब भी आप 10 में से 2 बार से ज्यादा बार ही सही हो गए। आप 3-4 बार सही हो गए, 6 बार गलत हो गए। अब 10 में 10 गलत नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट में। आज तक आपने किसी को नहीं देखा होगा जो 10 में 10 बार ही गलत हुआ होगा, इसलिए तो वो दोबारा बेट करने आता है, राइट। सो अगर आप 1:4 में काम करते हो और आप केवल एक 10 में से अगर केवल 2 ट्रेड आपके चल गए फेवर में और बाकी कोई भी ट्रेड नहीं चला, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर 1:5 में काम करने आपको आ गया कि आप एक 10 रुपए का एसएल और 50 रुपए से कम टारगेट नहीं लेते हो, और आपका एक ट्रेड भी आपके फेवर में चल गया, ठीक है, एक ट्रेड भी आपके फेवर में चल गया, लेट्स से 20% यहां भी आपका फेवर में चल गया और सारे ट्रेड लॉस में चल गए, तो भी आप पैसा बना लोगे। मान लो आपने 10 में से आपका केवल 2 ट्रेड सही हुआ, 50 रुपए आपने प्रॉफिट किया, 100 रुपए का प्रॉफिट, और 8 ट्रेड गलत किया आपने, 80 रुपए का लॉस, फिर भी 20 रुपए का प्रॉफिट आप निकाल लोगे। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इफ यू हैव टू मेक मनी इन द मार्केट, आप कोई ऐसा मैजिकल सेटअप मत ढूंढो जिसकी एक्यूरेसी 90% हो, जिसकी एक्यूरेसी 200% हो, कि मतलब ये सेटअप पे मैं काम करूंगा, चाहे ये इंडिकेटर से काम करूंगा तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। डोंट लुक फॉर एनी थिंग हुज एक्यूरेसी इज मोर। एक्यूरेसी आप बढ़ा घटा नहीं सकते हो, मार्केट के ऊपर है। जब मार्केट अच्छा होगा तो किसी भी बुरे से बुरे इंडिकेटर की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और बुरे से बुरे सेटअप भी अच्छा चल जाएगा। जब मार्केट खराब होगा तो कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप अपने विन को, आप कितने बार सही होगे इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप 10 में 10 बार जीतोगे, 10 में 6 बार जीतोगे, आपके हाथ में ही नहीं है। आपके हाथ में क्या है? रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप ब्लाइंडली अंधाधुन 1:3 पे ही काम करते हो, जो कि सबसे कॉमन है, 1:5 बहुत टफ हो जाता है, बट 1:3 अगर आपका लाइफ का एम बन गया कि मुझे 1:3 में ही काम करना है, चाहे मैं एसएल दे दूंगा लेकिन 3 रुपए से कम मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, पे काम करना है, अगर ये क्लियर किसी को हो गया, और अगर वो 10 में से 7 ट्रेड अगर लूज करता है, 7 ट्रेड मतलब 30% अगर वो सही हो जाए, 30% मतलब 10 में 3 ट्रेड केवल उसके सही हो जाए और 7 भी अगर वो लूज करता है, वो बंदा एंड ऑफ द मंथ पैसा बना के ही जाएगा। आप सोच लो कि अगर आपसे एंड ऑफ द मंथ पैसा बना के नहीं, आप गंवा के जाते हो। वाई? बिकॉज योर रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट गुड। आप 1:1 या 1:1 आधा में काम करते हो, हाफ में। आप रिस्क तो ले लेते हो 500 रुपए का,
₹100 के प्रॉफिट में निकल जाते हो। इसीलिए आप एक बड़ा स्टॉप लॉस आता है, आपके सारे पैसे को उड़ा देता है। हर बार यही होता था, होता है, होता रहेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया उस स्क्रिप्ट में, आपको 10 स्क्रिप्ट में काम नहीं करना है, एक चुनो, उसमें लगातार काम करो। डिसाइड कर लो उस स्क्रिप्ट में कि मैं ₹100 अपने हिसाब से, कि मैं ₹100 से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। आपका किसी को $10 का स्टॉप लॉस अच्छा लग सकता है, तो किसी को $1 का स्टॉप लॉस अच्छा लगेगा। मैं नहीं दूंगा, और मैं प्रॉफिट फिर $3 से कम या $30 से कम या $300 से कम नहीं लूंगा। एंड ऑफ द मंथ देख लेना, कितना भी गलत हो गए, 10 में से 2-3 बार भी अगर आप सही हो गए, आपने 1:3 निकाल लिया मार्केट से, यू विल मेक मनी। आपको डिसाइड करना होगा कि ₹100 एसएल, ₹300 टारगेट, $1 एसएल, $3 टारगेट, $10 एसएल, $30 टारगेट, $100 एसएल, $300 टारगेट। अगर ऐसे कर लिया और 10 ट्रेड ले लिया, आपके पैसे बनने कोई रोक नहीं सकता। दिस इज द सीक्रेट, यही है सीक्रेट, दिस इज द होली ग्रेल। होली ग्रेल है 1:3, 1:4 पे काम करना। स्टार्ट विथ 1:3 इन द बिगिनिंग। टारगेट कीजिए 1:3 को, अपना एसएल फिक्स कर लीजिए कि कोई भी ट्रेड में इससे ज्यादा एसएल नहीं लूंगा। आपने अगर मान लो डिसाइड किया ₹100 से ज्यादा एसएल नहीं लूंगा, तो अगर आपका एसएल ₹120 आ रहा है, तो उस ट्रेड को जाने दो। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ₹120 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि मुझे ₹360 मिल भी जाएंगे, देन एंटर। अदरवाइज ₹100 आपने एसएल डिसाइड कर लिया है और आपको ₹100 के अंदर मिलता है एसएल, जैसे ₹80 मिलता है, किसी ट्रेड में ₹70 मिलता है, तभी इंटर करो, अदरवाइज छोड़ दो। छोड़ दो, जाने दो ट्रेड, आपको हर दिन मार्केट ट्रेड देगा। यही तो खासियत है कि लोग पैसा लूज करते हैं, क्योंकि ये हर दिन ट्रेड दिखाता है। यू हैव टू सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ट्रेड आप में फिट बैठता है, 1:3 में फिट बैठता है, आपके स्टॉप लॉस में फिट बैठता है, कि ये स्टॉप लॉस $1 के अंदर है, $10 के अंदर है, $300 के अंदर है, $1000 के अंदर है, मैं मेरे रिस्क के अंदर है, मैं इस ट्रेड को ले सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं गलत हुआ तो मैं इतना दूंगा, अगर मैं सही हुआ तो मेरा 3 टाइम्स में रिटर्न लेके जाऊंगा। इस वाले को टारगेट करना है। 1:5 रेयर है, हमेशा नहीं मिलेगा। जो बंदा बहुत एक्सपर्ट है और हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करता है, जैसे 4 आवर, 1 आवर, वही इसको टारगेट कर सकता है। इसको हमेशा टारगेट 1:5 नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन कभी 1:5 मिल गया, वेल एंड गुड, एक फ्लो में मिल गया, मान लो 1:3 हिट हुआ, उसके बाद भी मार्केट रुक नहीं रहा है, तो जस्ट 1:3 पे अपना ट्रेलिंग एसएल लगा के बैठ जाओ। अगर 1:5 मिला है, एक भी 1:5 मिल गया आपको पूरे मंथ में, बस हो गया। आपको और ज्यादा पैसे मतलब गंवाने का टेंशन नहीं लेना है। वाई? बिकॉज आपने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जैकपॉट निकाल लिया। अब आपको बस 1:3 पे बने रहना है, राइट? सो दिस इज व्हाट द होली ग्रेल। ओके, आपका स्टॉप लॉस, आपको लॉस तुरंत काटना सीखना पड़ेगा, वो डिसाइड पहले करना पड़ेगा ट्रेड का, और आपको 1:3 में कम से कम काम करना पड़ेगा। यू नो, हो सके 1:3 हिट ना करे, 1:3 के थोड़ा पास पहुंच के आपको लग रहा है कि अब मार्केट टर्न मार, तो शायद आप निकाल सकते हो। वो एक सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश शुरू में ये करो, एक महीना कि 1:3 से नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यू नो, दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड।